answer your queries. So you can pose your question to him. First, he will address you. So, Saurabh. Good evening, everybody. I don't know how to start, but it was all. I would just like to thanks all the staff members of the day, Mr. Vinay Singh, sir, especially Mr. QH Khan, sir, who helped me a lot in all this and to achieve the culmination. And that's why I think I am here in front of you all. Uh, I don't know what to say, but just one thing: if you have decided, just go on, hit it, and you will achieve it. I think if you have got any doubts, you can ask me. Then step by step, I can address you better. Uh, my option was medical science. So, I'm an MD in that radiology. So, like in a particular subject, or you can say during this process. Ma'am, I think the difficult part is to cover GS, the general part, general studies part, and especially paper 2 and the paper 4. That's the, I think for me that was a very difficult part to cover it, and that too in a period of 11 to 12 months because I started in August 2014 only. And it was like you have to think about it, what questions UPSC can ask, and you have to make a list of those expected questions, and then you can, I think, do it's, many of them you all might be looking for those sites like Inside of India and all. I think Inside of India is a bit tough for us, because if you are trying to achieve this mark, or you're thinking to get a good rank in you can say in one first attempt or second attempt, it's like Inside of India is posing a few difficult questions, I think. It's better to, you have got better sites like GK Today. There's a, seriously I would say there's a good you can visit that. And especially questions framed in the coaching itself. It's not because I am from this coaching I'm telling you that, but it helped me a lot, because the questions they are presenting, it's like you have to think over it, you have to frame an answer, and you can then ask the teachers. Thank you, ma'am. Any आप लोग कुछ भी पूछना चाहते प्लीज बिकॉज सर सर medical science, it's like more or less straightforward questions, bit few questions were of you can say a case studies part. I think मुझे और अब marks मिलने चाहिए थे. I missed on that part. I don't know why scaling हुआ हो या कुछ हुआ हो, बट और इस बार भी शायद जो रिजल्ट है उसमें मेडिकल साइंस को बोला जा रहा है कि शायद द सब्जेक्ट विथ बेस्ट जो रिजल्ट्स मिले हैं वो मेडिकल साइंस में मिले हैं. हाँ, दे आर ऑल फ्रॉम MBBS लेवल. दैट्स अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन, बट व्हाट आई थिंक, जैसे अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, बहुत टीचर्स आपको बोलेंगे देयर आर ऑप्शंस लाइक कमेंट, एलुसिडेट, अदर रेस्ट ऑफ द थिंग्स. मेरा साथ क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मुझे जो समझ में आया उसका एक इंट्रोडक्शन, मतलब मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता, इंट्रोडक्शन पे था. मैंने जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा उस क्वेश्चन को मैंने एक फर्स्ट स्टेटमेंट में फ्रेम कर दिया अपने वर्ड्स में, एंड देन आई गेव द रीजंस एंड देन द कंक्लूजन. और मैं कोशिश करता था कि मैक्सिमम फ्लो चार्ट्स और मैक्सिमम डायग्राम से मैं आंसर को एक्सप्लेन कर दूं, बिकॉज 200 वर्ड लिखना मेरे लिए बहुत टफ था. एक नॉर्मल स्पीड होती है किसी भी बंदे की 30 to 40 वर्ड्स पर मिनट, और वहाँ पे आपको सोचना भी है, उसे सोच करके फिर आपको आंसर भी फ्रेम करना है, तो वो थोड़ा मतलब यू कैन से टफ हो जाता था. तो मैंने फ्लो चार्ट्स बना लेता था, उससे मुझे थोड़ा आइडिया मिल गया. एंड देन क्योंकि लोग जैसे बोलते हैं ना कि क्वेश्चन के सामने आप थोड़ा सा एक पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर आपको आसानी हो जाती है लिखने के लिए. तो मैं क्या करता था, वो पहले से ही आंसर्स में ही 4-5 पॉइंट्स से बुलेट पॉइंट्स में लिख लेता था, और उसको मैं फिर मतलब एक्सप्लेन कर देता था. मैंने ये कोशिश किया. सर मैं आपसे जैसा बताया कि उसमें ऑप्शन होते हैं ना, ओपाइन, एलुसिडेट एंड कमेंट एंड ऑल. इसमें ज़्यादा सोचता नहीं था. क्वेश्चन मेरे सामने आया, आई यूज्ड टू थिंक ऑफ दैट क्वेश्चन ये क्या पूछना चाह रहे हैं, मैंने उस हिसाब से आंसर लिख देता था. क्योंकि अगर मैं ये सोचने लगूँ कमेंट है, एलुसिडेट, फिर सोचना पड़ेगा उस हिसाब से पॉइंट, मतलब मैं कर नहीं पाता. मतलब ये मेरा शायद वीकनेस था. आई डोंट नो सर. थैंक यू सर. Sorry sir. It was 138 essay.
94 पेपर 1, 86 पेपर 2, 120 पेपर 3, पेपर 4 91, then medical science was 262 paper 2. It's like that. But I was expecting a bit low in that. मतलब मैं सोच रहा था 60-70 से नंबर ज़्यादा नहीं आएंगे, बट ठीक है थोड़ा ज़्यादा आ गए, आई डोंट नो. टॉपर्स का भी सर यही है, पेपर 2 में मार्क्स नहीं आते. ये लास्ट फ्यू ईयर से चला आ रहा है, डोंट नो. मैंने कोशिश किया था कि शायद मैं इसको चेंज कर सकूं अपनी तरफ से, लेकिन बहुत मुश्किल है. बिकॉज एवरेज भी मेरे ख्याल से 60, 65, 70 तक गया है. तो आई थिंक मेरे शायद वन ऑफ द हाईएस्ट होंगे पेपर 2 में. मतलब दैट्स व्हाट आई थिंक. मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे होंगे ही, बट मुझे ऐसा लगता है. स्ट्रेटजी फॉर सेकंड पेपर सर, मेरे ख्याल से आप पीआईबी और पीआरएस की जो साइट्स होती है ना, उस पर जो भी बिल्स आते हैं उनका इवेल्युएशन दिया रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप सिर्फ उन इवेल्युएशन को पढ़ करके अपने हिसाब से आप 1-2 क्वेश्चन फ्रेम कर लेंगे, आप इजीली क्रैक कर लेंगे. साथ ही साथ में उसके साथ जैसे हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में जो भी चीज़ें आए या कोई लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप उसको अगर कवर कर लिया तो आई थिंक पेपर 2 बहुत ईजी है इन दैट पार्ट. वो चीज़ें, लेकिन ये प्रॉब्लम हो गई कि इन्होंने पेपर 2 जब पूछा तो बहुत ही रिसेंट इशूज़ पूछ लिए थे. हाँ, और वो रिसेंट इशूज़ हम कवर नहीं कर पाए थे बिकॉज कि बाकी प्रिपरेशंस भी करना था, तो वो चीज़ मिस हो गई थी थोड़ा. बट आई थिंक ये बेस्ट तरीका है करने का. नो नीड टू गो फॉर एनी कम्पिटिटिव मैगजीन्स और वॉट. आप सिर्फ पीआईबी पीआरएस के साइट्स पे जाइए, उनका इवेल्युएशन जो भी है वो आप देखिए एक बार, आपको मेरे ख्याल से बहुत ईजी लगेगा. सर नो सर, वीक बाई वीक यू कैन गिव, वीक बाई और यू कैन गो फॉर फोर्टनाइट. आपको जैसा ईजी लगे. आपको क्या करना है, आपको हर बिल नहीं देखना, आपको वो बिल देखना है जो बिल बहुत इशू में आ रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लैंड बिल आया तो वो इशू में आया, तो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क अबाउट द लैंड बिल. हाँ, या कंपनीज एक्ट पे क्वेश्चन आया था जैसे इस बार, तो कंपनीज एक्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. वो कहेंगे कि ठीक है, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू इम्प्रूव द गवर्नेंस इन द, टू इम्प्रूव द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो आपको उसके हिसाब से पॉइंट्स लेकर के आने हैं. मतलब आपको एग्जाम्पल्स वैसे ही कोट करेंगे. बिकॉज उन्हें क्वेश्चन जैसे पूछा, सत्यम स्कैंडल हुआ, उसमें कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ठीक करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए, तो वो एक मेथड. आईआर सर मेरे ख्याल से विनय सिंह सर इतना पढ़ा देंगे कि मुझे लगता नहीं कुछ जरूरत पड़ेगी. बट जैसे जो हिंदू में पेपर आता है पूरा इंटरनेशनल का, उसमें से आपको जो लगे कि काम का है सर के नोट्स के हिसाब से. सर मैंने एक जो तरीका अपनाया था वो ये था कि मैंने एक सर ओके यू आर टेकिंग द क्लासेस. सर देखिए, मैंने एक जो अपना स्टेप लिया था वो मैंने क्या किया था, मैंने एक वर्ड मैप थोड़ा रफ बनाया मैंने, और इंडिया को सेंटर में रख करके मैंने हर कंट्री से लिंक कर दिया. एंड जो भी इश्यूज मुझे लगते थे ये इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल रिलेटेड विद इन्वायरमेंट या फिर न्यूक्लियर वेपन्स या फिर कोई भी एनीथिंग क्लाइमेट एंड ऑल, मैं हर उस चीज़ को बस उसी में लिख लेता था. और मैं बस वो पॉइंट्स याद रखता था, क्योंकि इवेलुएट आप एग्जाम में भी कर लेंगे, बट अगर आपको पॉइंट्स याद रहें तो, ऐसा मुझे लगा था. तो ये थोड़ा मैंने ये स्टेप लिया था. आई थॉट टू शेयर. सर मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ऑलमोस्ट मैंने खुद किया है. मुझे सर ने जितना विनय सिंह सर के नोट्स थोड़े बहुत जो क्लास में उनके मैंने लिए, और मैंने किसी और चीज़ को कोई कंसल्ट नहीं किया था. तो आई एम वेरी सॉरी कि मतलब विजन है इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं. आई एम वेरी सॉरी सर. सर नंबर तो बहुत अच्छे नहीं है, तो स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से आपके किसी काम की नहीं है. बट सर जैसे एक आप यहाँ पे दिल्ली में एक लेक्सिकॉन चलती है, आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं उस किताब को, बट सर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है. मैंने सुना है, सिर्फ लोग बोलते हैं लेक्सिकॉन एंड ऑल, मुझे आइडिया नहीं सर. तो जैसे कि इसमें धे की सर एक इंग्लिश में आती है एथिक्स की बुक. आई थिंक एक बार ज़रूर आप उसको लाइन बाय लाइन आप पढ़ लेंगे. मुझे लगता है कि जो थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, जो थ्योरिटिकल पार्ट आता है ना एथिक्स का, उसमें आप बहुत अच्छे नंबर पा सकेंगे. केस स्टडी का तो ठीक है, थोड़ा सा आपको खुद रेडी करना होता है अपने आप को, बट मुझे उसमें लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं सर. आई थिंक सर नवंबर ऑनवर्ड्स, नवंबर से आप चलते रहिए. मेरे ख्याल से फोकस करिएगा मई से या फिर अप्रैल से, अप्रैल मई, नहीं अगले महीने से. इतना पीछे यूपीएससी भी नहीं जाता सर, बिकॉज हमारे क्वेश्चन भी जो आए थे मुझे नहीं लगता इतने कोई पीछे से कोई इन्होंने बैकलॉग से कोई क्वेश्चन उठाया और नहीं सर. मिस्टर गुप्ता थे 165, बहुत ही ख़राब थे. मतलब ठीक है, आई डोंट नो, उस पूरे दिन उन्होंने मार्क्स ही नहीं दिए, 172 हाईएस्ट दिए, क्यों पता नहीं, शायद हम नहीं कर परफॉर्म कर पाए. आई एग्री, ठीक है, हो सकता है सर. 28 मिनट्स. क्वेश्चंस वेयर बेसिकली कि आप एक डॉक्टर हैं, आप क्यों आना चाहते हैं, कॉमन जो कि पूछना ही उनको है. एंड देन मैक्सिमम क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम इकोनॉमिक्स, जैसे व्हाट डू मीन बाय इन्फ्लेशन, व्हाट इज पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन, एंड देन व्हाट स्टेप्स आरबीआई लेती है कि टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, व्हाट इज मोरल एस्टिमेशन एंड ऑल.
बाकी पार्ट्स हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए. देन क्वेश्चंस वेर आर व्हाट इज़ बॉन्ड डिबेंचर्स, व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो कि भी न्यूज़ में आ रही है, क्या लगता है कितना कर पाएगी. एंड देन क्वेश्चंस वेर फ्रॉम बजट की, बिकॉज मेडिकल से रिलेटेड थे बजट में, कि प्राइवेट प्लेयर्स को आप मेडिकल फील्ड में ला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कितना अच्छा हो सकता है. तो वो सर मेरे ख्याल से एक पैनल में एक पर्सन थे जिन्होंने वो मेडिकल हॉस्पिटल से के टेक्निकल पार्ट से पूछना शुरू कर दिया, जैसे एक ओटी में कितने एसी वेंट होते हैं ऑल ब्ला ब्ला. तो वो चीज़ें क्वेश्चंस मैं बिल्कुल छोड़ दिया था. 4-5 क्वेश्चंस आई थिंक मैंने बिल्कुल सेट कर दिया. नो आइडिया सर. सर आई थिंक कि कोचिंग आपको एक बहुत अच्छा गाइडेंस देता है. आई एम नॉट सेइंग कि आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते, बट अगर जैसे आपका प्लान, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको इन ए शॉर्ट पीरियड में कवर करना है, जैसे मेरे साथ क्या था, मैंने पहले सोच रखा था 1 एंड लास्ट अटैम्प्ट नहीं देना था. एंड मेरे पास 11 मंथ्स थे टोटल, तो मुझे कवर करना था, साथ ही साथ में समझना था. अगर आपका जैसे प्लान है 2017 फॉर एग्जाम्पल, या 2016 भी यू कैन से, तो अगर आप कोचिंग का साथ लेते हैं तो वो आपको एक गाइड करता जाएगा इंटरवल पे, या आपके कलीग्स जो बनेंगे उनसे आप थोड़ा सा इंटरेक्ट होते रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिलता जाएगा, आप ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे. सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि अगर आपको गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है तो आप बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं, और वो मुझे नहीं लगता, कभी कभी वो आपके लिए एक सेटबैक भी हो जाता है. सर अगर आप खुद के नोट्स बनाते हैं, देखिए जैसे मैं पर्सनल नोट्स में बिलीव नहीं करता था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. मैं कहता हूँ कि किसी की स्ट्रेटजी आप अडॉप्ट मत करिए, बिकॉज बहुत लोग अपनी अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे. बेस्ट है आपकी स्ट्रेटजी जो खुद आप स्ट्रेटजी बनाएंगे. तो मेरा ये कहना है, अगर आप नोट्स बनाते हैं देन वेरी गुड, बिकॉज आपको कवर करने के लिए बहुत ईजी होगा. बट अगर आप बुक से भी पढ़ते हैं तो बुक्स में भी आप छोटे छोटे क्लिप्स बना सकते हैं, जैसे मैं करता था. बुक्स में मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना लेता था, उसी में ऐड कर देता था. तो इससे मुझे क्या होता था कि मुझे एटलीस्ट एग्जाम टाइम में अगर मैं आंख बंद करूँ और मुझे याद करने की कोशिश करूँ कि क्या क्या कहाँ कहाँ से मुझे मैटर उठाना है, तो मुझे याद आएगा कि हाँ, रमेश सिंह में लेफ्ट हैंड साइड पे CRR लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे SLR लिखा हुआ है, ऊपर रेपो रेट लिखा हुआ है, मुझे इन तीनों को मिक्स करना है. तो ये थोड़ा सा आपको एग्जाम में एक एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि आपके पास 8 से 9 मिनट होते हैं, उसी में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, इवेलुएट करना है और आंसर लिखना है. और अगर आपके आंसर इधर उधर भागे तो वो नंबर भी नहीं देते, वो थोड़े से हैं. तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर आप बुक से कवर करेंगे तो आपको साथ ज़्यादा रहेगा. बट आपका अगर स्ट्रेटेजी नोट्स बना करके है तो आई थिंक आप अच्छा कर सकते हैं सर. बेस्ट सर, अगर मुझसे आप कहेंगे कि GS के लिए किस बुक को कंसिडर करना चाहिए, तो मैं कहूँगा NCERT. मतलब NCERT इज़ द बेस्ट बुक ऑल ओवर कवर करने के लिए, चाहे वो मेंस हो चाहे प्री हो. उसके अलावा सर, जैसे अगर ज्योग्राफी के लिए अगर मुझसे पूछेंगे तो ज्योग्राफी GS के लिए प्रिपरेशन के लिए मैंने कोई और बुक कंसिडर नहीं की थी. लियोंग ली थी, मैंने पूरा कवर नहीं कर पाया था बिकॉज टाइम भी नहीं था मेरे पास. एंड हिस्ट्री पूरी NCERT पे है, एक्सेप्ट फॉर राजीव वाहिर की स्पेक्ट्रम की आती है, प्लस वर्ड हिस्ट्री के लिए ध्येय के नोट्स आते हैं, पूरी वर्ड हिस्ट्री की है. गवर्नेंस के लिए, मेंस के लिए भी ध्येय के नोट्स थे, वो गवर्नेंस मेरे काफ़ी था. पॉलिटी लक्ष्मीकांत की कवर की मैंने. एंड पॉलिटी के लिए कुछ NCERT की बुक्स भी हैं जिसमें कुछ कुछ चैप्टर्स के बड़े अच्छे बैठे, जैसे व्हाट आर द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट इज सेक्युलरिज्म, बिकॉज एक बुक आती है पॉलिटिकल थ्योरी करके, आई थिंक क्लास 12th में. मुझे एक्जैक्टली याद नहीं किस क्लास में आती है, 11th में सर, मुझे नहीं आइडिया. दैट्स द बेस्ट बुक आई थिंक. अगर आपको ये सही क्वेश्चन आते हैं टॉलरेंस से रिलेटेड, सेक्युलरिज्म, तो आपको एटलीस्ट आइडिया रहेगा कि NCERT या मतलब गवर्नमेंट का व्यू क्या है ऑन दोज टॉपिक्स. तो अगर आप वही लिखेंगे तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे. रेस्ट अगर आपको एथिक्स के लिए, सॉरी आपको बताना, एथिक्स में अगर आप चीज़ और ऐड करना चाहते हैं तो सेकंड ARC की एथिक्स का जो नोट्स है वो हर हालत में पढ़ लीजिएगा. आपको मैं सच बताऊं, आपको आंसर लिखने में इतना मजा आएगा, आप मानेंगे नहीं उस बात को, मतलब बहुत अच्छा लगेगा लिटरली. नहीं सर, सिर्फ सेकंड मतलब सेकंड ARC का सिर्फ एथिक्स का पार्ट, और एथिक्स का पूरा पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप क्या करिए, उसमें लास्ट में बॉक्स बनते हैं, ब्लैक बॉक्स, जैसे वो अपने रिकमेंडेशन देता है, पहले वो प्रॉब्लम लिखता है फिर रिकमेंडेशन देते हैं, उतना कर लीजिए सर, आपको बहुत अच्छा लगेगा. बिकॉज जैसे अगर मैं पूछूँ आज की डेट में करप्शन पे कोई इशू आए, तो जो करप्शन, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में क्या क्या लैकुने हैं, क्योंकि अगर हमें करप्शन को कंट्रोल करना है तो लैकुने कहाँ कहाँ है हमें वो समझना होगा. सेकंड ARC उसको बहुत ईजिली एक्सप्लेन करती है. और अगर गवर्नमेंट का ओपिनियन ऐसा है या कमीशन ऐसा कुछ ओपिनियन देती है और अगर वो आप आंसर में लिखेंगे, आई थिंक यू विल गेट गुड मार्क्स. दैट डिपेंड्स, बिकॉज मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स तो देने पड़ेंगे सर, मतलब अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग आवर्स. 10 to 12 आवर्स आई थिंक सर, बिकॉज अगर जैसे मेरा था कि एक दिन को मैं हमेशा अपने आप फ्री रखता था फॉर
थोड़ा माइंड को रिलैक्स करने के लिए। आई मूवी मैनिएक, तो मैं मूवीज़ बहुत देखता था। तो फ्राइडे मैं यूजली मूवी देख के लिए छोड़ता था, बाकी दिन आपको 8 आवर्स तो मिनिमम देने पड़ेंगे सर, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि सर बिल्कुल आपको वो न्यूज़पेपर कटिंग्स, बिकॉज आप न्यूज़पेपर्स आप पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं मान लूँगा कि 1/2 to 2 आवर्स आपको उसमें ही लग जाएंगे, क्योंकि आप जो आर्टिकल्स पढ़ेंगे उस आर्टिकल्स को अपने टेक्स्ट बुक से आप रिलेट करेंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसमें 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद आप अपना कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, 5-6 आवर्स नहीं पढ़ा आपने तो कवर कोर्स नहीं हो पाएगा ऐसा। फॉर मी आई स्टार्टेड इन अगस्त 2014 ओनली, तो 2015 में मुझे एग्जाम देना था। 1 ईयर सर, 1 ईयर सीरियस प्रिपरेशन। आई थिंक दैट इज सफाइस, मतलब यू कैन ईजिली क्रैक, मतलब कुछ अगर आपको अच्छा गाइडेंस है, यू कैन गेट ए गुड एबल गाइडेंस ना, आई थिंक 9 months इज सफिशिएंट। सर इकोनॉमिक्स, सर मैं कहूँगा कि आप रमेश सिंह को कंसिडर करिए, रमेश सिंह को, उससे बेस बनाइए। मैं ये नहीं कहूँगा उसको याद करिए, उससे सिर्फ बेस बनाइए। जैसे आपके कोई इशू आए तो वो इशू समझने में ईजी हो आपको, देन गो फॉर हिंदू में जो इकोनॉमिक का पार्ट आता है या इंडियन एक्सप्रेस में जो इकोनॉमिक्स का पार्ट आता है उसको पढ़िए। जो समझ में न आए उसको उस बुक में खोजिए और फिर रिलेट करिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक सर्वे का इवेल्युएशन बहुत लोग निकालते हैं, जैसे अरिहंत है, ये निकालते हैं, इसको ज़रूर पूरा कर लीजिएगा। वन मोर थिंग सर, ध्येय की एक बुक आती है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, हाँ, प्लस एक एनसीईआरटी की भी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करके है वो, तो इन दोनों को ज़रूर एक बार आप एक रीडिंग दे दीजिएगा, सो दैट कि आपके कॉमन चीज़ें आपके दिमाग में रहें कि क्या क्या हो सकते हैं। सर लोग पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं था। लोग करते हैं बिकॉज पॉलिटिकल साइंस जिसका ऑप्शनल है या पब्लिक एड है या फिर सोशोलॉजी है, वो लोग ज़रूर पढ़ते हैं उस चीज़ों को। आई वॉज नो, मतलब मैं नहीं कर पाया, आई डोंट नो, बिकॉज टाइम भी नहीं था मेरे पास, तो इसलिए। हाँ सर, बट द पॉइंट इज यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट, आप मेडिकल के हैं, तो सर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप मेडिकल साइंस के हैं तो गो फॉर मेडिकल साइंस। रीज़न 2, फर्स्ट सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, और सेकेंड जो क्वेश्चन इनके आते हैं एग्जाम में वो पर्टिकुलर टॉपिक्स उन्होंने मेंशन कर दिया है सिलेबस में, आप सिर्फ उतना पढ़ लीजिए, आप कर लेंगे। सिर्फ वो सब्जेक्ट 19 है उनको छोड़ दीजिए, बिकॉज बाकी लोग का भी सब्जेक्ट छोटा नहीं होता। सोशोलॉजी, पब्लिक एड, एंथ्रोपोलॉजी आप लेंगे, एंथ्रोपोलॉजी बहुत ह्यूज सब्जेक्ट है, ठीक है, और आपने पढ़ा हुआ है ना मेडिकल साइंस, तो आपके सामने कोई क्वेश्चन, कोई मान लीजिए कोई डिफरेंट क्वेश्चन आया, ठीक है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा बट आप उसको कवर कर लेंगे। आपको मैं जैसे बताऊं कि मैंने एमबीबीएस खत्म किया 2007 में, उसके बाद मुझे 6 years हो गए हैं, बिकॉज मैं एमडी कर रहा था, देन आई डिड डीएम, तो मैंने सब कुछ किया, तो मुझे बहुत टाइम हो गया, बट फिर भी मैं उसको कवर कर पाया बिकॉज कि मैंने उसको पढ़ा हुआ था पहले, अदरवाइज मैं शायद नहीं कर पाता। और मेडिकल साइंस का एक एडवांटेज आपको, बिकॉज आपका ग्रेजुएशन अगर मेडिकल साइंस में है, तो कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो क्वेश्चन आपको लगता है आप नहीं पढ़ पाए हैं अभी, फिर भी आप लिख सकते हैं उसमें। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। आप कर सकते हैं, नहीं सर आप कर सकते हैं, लेकिन आपको वैलिड पॉइंट्स देने होंगे। जैसे अगर इट शुड नॉट बी लाइक, फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं यूपीएससी की सेफ्रनाइजेशन इशू, लेकिन अगर सेफ्रनाइजेशन पे अगर आप लिख रहे हैं और आपको लग रहा है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, आप वैलिड पॉइंट्स दे सकते हैं, बट नॉट वो मीडिया वाले पॉइंट्स नहीं, अ गुड वैलिड पॉइंट, आपका आंसर अच्छे नंबर पा सकता है, बिकॉज आप डिफरेंट रहेंगे। मेरे को हमेशा आप एक कोशिश आप जरूर रखिएगा कि दूसरों से थोड़ा डिफरेंट आंसर लिखिए, प्रेजेंटेशन डिफरेंट होना चाहिए, आंसर का मैटर थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, वो मेरे ख्याल से वो बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए। नहीं सर, आप जैसे अगर आप मेरे से एडवाइस लेंगे तो आई विल से कि ज्योग्राफी क्लास 7th to 12th, 6 पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई यूज की नहीं है। देन हिस्ट्री क्लास 6 to 12th, लेकिन जो 12th में 11th 12th में जो थीम्स आती है उसको आप लास्ट के लिए रखिएगा, कवर करिएगा क्लास 6 से 10 तक, बिकॉज वो आपका मैक्सिमम का पार्ट कवर कर लेगा। एंशियंट हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु की एनसीईआरटी बुक आती है क्लास 11th की, वो बहुत अच्छी किताब है, शॉर्ट में उसने बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स लिखे हुए हैं, वो आपको बहुत अच्छे रहेंगे। प्लस इग्नू के नोट्स आते हैं सर, मृणाल की साइट है, मृणाल की साइट पे आप जाएंगे, इग्नू के नोट्स आएंगे, 5 पेजेस के नोट्स होते हैं, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, तो वो आप कवर कर लीजिए, मेरे ख्याल से वो आपको ईजी हो जाएगा। वन मोर थिंग सर, मैं आप लोगों से कहूँगा कि हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा रहता है कि हम इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ें सिर्फ 2-3 क्वेश्चन के लिए प्री में और फिर मेंस में 1 क्वेश्चन के लिए। सर इग्नू के नोट्स खोलेंगे, आर्ट और पेंट,
आई थिंक आर्ट एंड पेंटिंग ऐसे करके कुछ है, 5 पेज का है वन, एक आर्किटेक्चर का है 5 पेज का है, एक फिलॉसफी का है 5 पेज का है। सिर्फ 15 पेज पढ़ लीजिए। यूपीएससी ने आज तक 5 साल तक कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा। मैंने सब चीज़ों को चेक किया है और आपको सच बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं है। वन मोर थिंग, एनसीईआरटी में सर जितने भी एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी को नहीं बोलता, न्यू एनसीईआरटी में बॉक्स बने होते हैं सर, कभी कभी रेड ब्लू बॉक्स। बाकी मैटर आप नहीं पढ़ पाइए, बट प्री के लिए उन बॉक्सेस को जरूर पढ़ के जाइएगा। प्लस साथ में कुछ कुछ वो बने होते हैं, फोटो बने होते हैं, जैसे कुछ वो इलस्ट्रेट करना चाहते हैं, उसके नीचे का मैटर। जैसे 2013 में देयर वाज अ क्वेश्चन, व्हाट इज नेस्तालिक, NASTALIQ, व्हाट इज नेस्तालिक। तो इट्स अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, उर्दू राइटिंग का या पर्शियन राइटिंग का एक फॉर्म है, स्क्रिप्ट है। तो ये कहाँ आपको मिलेगा? ये बाकी बुक्स में आप खोजेंगे तो आप लोग एटलीस्ट 500 पन्ने की किताब पढ़ेंगे, उसमें आपको मिलेगा। एनसीईआरटी में पेज नंबर 2, क्लास आई थिंक 9th, उसमें आपको पेज नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड पे एक नस्तालिक स्टाइल दिया हुआ है एंड शिक्रे, 2 तरह के स्टाइल है, उसमें नीचे मेंशन किया हुआ है। तो एनसीईआरटी प्लस इग्नू के नोट्स बिल्कुल मत छोड़िएगा, प्री बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा और यही बेस आपको मेंस पे हेल्प करेगा। पेपर 4 इंटरव्यू में क्या रिलेशन है? सर मुझे ऐसा लगता है कि पेपर 4 पढ़ने के बाद आपको समझ में आना शुरू होता है कि सोसाइटी एग्जैक्टली है क्या। जैसे हम पढ़ते हैं वर्ड एम्पैथी, सिंपैथी, टॉलरेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब का मतलब सर हमें पढ़ना तो इजी लगता है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज, रिस्पेक्ट क्या है, रेस्पिसियर क्या है, रेवरेंस क्या है, ये चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब हम पेपर 4 पढ़ते हैं। जैसे हम सोचते हैं रिस्पेक्ट मतलब एक बच्चा किसी सीनियर के पैर छुए, वो रिस्पेक्ट है। नो सर, वो दैट इज नॉट रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम ए वर्ड नोन एज रेस्पिसियर। उसका मतलब होता है टू लुक बैक। हम किसी के भी, ऐसा मुझसे कहा जाएगा किसी सीनियर के पाँव छूने के लिए, तो मैं उनके बैक को देखूंगा, अगर उनका बैक अच्छा है तो मेरे मन में जो फीलिंग आएगी दैट इज रिस्पेक्ट। तो ये आपको समझ में आएगा पेपर 4 पढ़ने के बाद ही। और यही चीज़ जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इसी से आपका जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, वही चीज़ वो चेक करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन वो आपको ज़बरदस्ती इरिटेट करेंगे किसी क्वेश्चन पे, तो आपका जो बिहेवियर, फेशियल एक्सप्रेशन रहेगा, वो कैसा चेंज होता है, वो शायद पर्सनैलिटी टेस्ट में वो देखा जाता है। एक साइकोलॉजी का बंदा रहता है, लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं, वो यही चीज़ नोट करता है। आई थिंक सर पहले की मेरे जो आंसर्स हैं मैं बहुत ही जल्दीबाजी में देता हूँ, सोचता हूँ कि नहीं सोचता हूँ। टीचर से सवाल ख़त्म होने से पहले मैं सवाल आंसर देना शुरू कर देता हूँ। इरिटेट तो नहीं होता हूँ। एक स्माइलिंग फेस, एक काम एंड कंपोज्ड फेस हमेशा रहता है कि नहीं रहता है। आई थिंक यही चीज़ें वो ध्यान देते हैं, बट बाकी चीज़ें वो क्या ध्यान देते हैं सर, वो कहना थोड़ा मुश्किल है। बिकॉज जब मेरा पीसीएस का रिजल्ट नहीं हुआ मुझे, तो थोड़ा सा सेटबैक लगा था। तो मैंने फिर उसके बाद फिर बहुत जगह से कोशिश किया, मॉक इंटरव्यूज़ दिए 2-3 जगह, बट और फ्रस्ट्रेट होता चला गया। तो नेगेटिव पॉइंट्स हैं मेरे, मतलब मैं जल्दी आंसर करता हूँ, लोगों के क्वेश्चन पूरे सुनता नहीं हूँ। ये लोगों ने मुझे, मतलब सर ने मुझे ये पॉइंट आउट किया था, खान सर ने मुझे ये पॉइंट आउट किया था। मैं कोशिश किया इसको कम करने के लिए, बट कर नहीं पाया। मुझे भी लग रहा था मैं इंटरव्यू में कर नहीं पाया। करंट सर, जैसे अगर आपको करंट कवर करना है तो जैसे आपको ने बताया कि जीके टुडे साइट है सर, आप उस साइट पे चले जाइए। उनके पेपर्स आते हैं, जैसे वो प्रैक्टिस पेपर्स देते हैं। बिकॉज अगर आपने मुझसे पूछा होता कि आप 2018 के लिए जाने वाले हैं, सॉरी 17 के लिए जाने वाले हैं, तो मैं आपको एडवाइस देता कि वो जीके टुडे में नवंबर से वो स्टार्ट करते हैं एक सेट पैटर्न टारगेटिंग प्री एंड मेंस। तो उसमें उनके मैटर होते हैं हर पेपर वाइज, पेपर 1, 2, 3, 4, प्लस वो सीजीएस देते हैं। उसमें क्या है कि वो कुछ करंट इवेंट्स बताते रहते हैं। क्वेश्चंस वहीं से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ जीके टुडे से क्वेश्चन फ्रेम करता है यूपीएससी, बट वो हर उस चीज़ को लेके आ जाते हैं जो कि यूपीएससी पूछना चाहता है, ऐसा मुझे लगा। बिकॉज प्री के पहले मुझे ये बताया था किसी ने जीके टुडे को करने के लिए, और मैंने उनके शायद 14-15 पेपर्स किए थे, मैंने प्रैक्टिस के लिए किए थे, एंड दे हेल्प मी अलॉट। बिकॉज आउट ऑफ 100 मेरे 91 करेक्ट थे प्री में। तो फॉर प्री करंट सर मेरे ख्याल से 3 to 4 आवर्स आपको देने पड़ेंगे, बिकॉज क्योंकि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, वो सब्जेक्ट पढ़ना काफ़ी नहीं है। उस सब्जेक्ट को जब तक आप करंट से रिलेट नहीं कर दिए, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एग्जाम वो नहीं पूछेगा आपसे कि व्हाट इज़ आर्टिकल 142, वो नहीं पूछेगा सर।
इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर। उसके बाद क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई आर्टिकल आपके सामने आता है जो आपको लगता है कॉन्ट्रोवर्शियल है, जैसे उत्तराखंड केस सुप्रीम कोर्ट इंट्रूड कर रही है, तो आपको ये देखना है कि क्या कितना डोमेन है सुप्रीम कोर्ट का इंट्रूड करने का, क्या वो कर सकती है कि नहीं कर सकती है, बिकॉज आपके व्यूज पूछे जाएंगे और वही आपको लिखना है। बाकी सर क्लास 6 to 10th मस्ट है, बिकॉज आपके जैसे ये इस बार क्वेश्चन आया था प्री में, बाबर का क्वेश्चन आया था, आप जाइए क्लास 7 के एनसीईआरटी खोलिएगा, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। 9th 10th फर्स्ट पक्का करना ही करना है। जो थीम्स का पार्ट है, मैंने आपको बताया ना 11th 12th में जो थीम्स है उसमें बॉक्सेस बने होते हैं, उन बॉक्सेस से क्वेश्चंस वो फ्रेम करते हैं। फॉर एग्जांपल थ्योरी गाथा पूछा था उन्होंने सीएपीएफ के एग्जाम में, थ्योरी गाथा, व्हाट इज थ्योरी गाथा, तो ये आपको सिर्फ उस एनसीईआरटी के उन बॉक्सेस में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। मतलब सर मैं ये लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी क्वेश्चंस फ्रेम एनसीईआरटी से ही कर रही है सर। नहीं सर, मैं ओल्ड एनसीईआरटी को नहीं कहता, क्योंकि जब सीबीएसई ओल्ड एनसीईआरटी, हाँ सर इट्स लाइक दैट, बिकॉज मैं आपसे कहूंगा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सीबीएसई ओल्ड एनसीईआरटी को हटा रही है, बिकॉज क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी वो किसी एक ऑथर के व्यूज होते थे, अब क्या है जो नई एनसीईआरटी है वो बहुत सारे ऑथर्स के व्यूज हैं, और आप नोट करेंगे कि आज की डेट जो भी नई एनसीईआरटी है उसमें जितने ऑथर्स हैं वो किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं करते, वो उसके दोनों व्यूज देते हैं, फॉर अगेंस्ट, और आपको छोड़ देते हैं, आप इवेलुएट करिए आपको क्या बेटर लगता है। उन्होंने इंदिरा गांधी को भी पॉलिटिक्स की क्लास 10th की किताब में इंदिरा गांधी को कुछ लोग उन्होंने लिखा, कुछ ऑथर ने खराब लिखा, कुछ ऑथर ने अच्छा भी लिखा, आप इवेलुएट करिए कि अच्छा क्या है। नेहरू को गांधी एंड ऑल बाकी जो भी है सर। सर मैं इंग्लिश मीडियम था, मैं इलाहाबाद से कोचिंग किया था, वहाँ मैक्सिमम नोट्स मुझे हिंदी में मिलते थे, मैं वहाँ हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि सर अगर आपको लगता है कि आप आंसर्स लिख सकते हैं, जैसे कहता हूँ कि आप आंसर्स लिख सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है, ग्रामेटिकल एरर्स थोड़े बहुत होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, आप आराम से कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम। सर मैं समझ नहीं पाया। तो सर बहुत टाइम है अभी तो। सर जैसे अगर आप अभी से शुरू कर दीजिए, जैसे कोई भी हिंदी का पार्ट है, आपको लगता है कि मैं, क्योंकि मुझे जैसा लगता है सर हिंदी वाले जो थोड़े परेशान रहते हैं वो इसलिए रहते हैं क्योंकि हिंदी में वो वर्ड्स वो लेके नहीं आ पाते हैं जिससे वो अपने मर्म या मतलब इमोशंस को कहना चाहते हैं, है वहाँ थोड़ी फाइट हो जाती है। और इंग्लिश वालों के पास ये थोड़ा सा एडवांटेज होता है, दे कैन प्ले विद वर्ड्स। तो अगर आप 2017 सोच रहे हैं, आप धीमे धीमे स्टार्ट करिए, आप कर लेंगे। मेरा फ्रेंड है सूरज करके, ठीक है, उसका नहीं हुआ इस बार, वो मेरे साथ इलाहाबाद में ही था, नाउ ही इज़ इन दिल्ली, ऑप्शनल पेपर उसका बहुत ख़राब हो गया था, तो इसलिए, बट मैं ज़रूर कहूँगा कि वो बंदा टोटली हिंदी मीडियम का था, बट उसने इंग्लिश में पूरी मेहनत की, और मैं बोलूँगा आज के डेट में वो ऑलमोस्ट ही कैन बी ए गुड कंप्यूटर फॉर यू इन 2016, मतलब इस मतलब बिल्कुल सर बिल्कुल। आप एग्ज़ाम के बीच में बोल रहे हैं या एग्ज़ाम से प्री एंड मेंस के बीच में? सर जैसे देखिए एग्जाम के दौरान तो आपके पास टाइम होता नहीं, होता क्या है, आप मॉर्निंग में एग्जाम दे करके आते हैं, फिर आप इवनिंग में एग्जाम देते हैं, जब वापस पहुंचते हैं आपको लगता है थोड़ा सो ले, वो भी आप नहीं कर पाते हैं। तो उसमें केस में अगर आप सो नहीं पाते, जो मैं करता था, बेस्ट क्या करता था, एक वेट क्लॉथ लेता था, उसको ग्लिसरीन में खूब डुबो करके आंखों में रख करके ऐसे लेटर रहता था, नींद आए चाहे ना आए, सो दैट आंखों का जो टायर्ड है ना, जो आंखें टायर्ड हो रही है वो थोड़ी ठीक हो जाए। फिर बीइंग अ डॉक्टर थोड़ा सा आइडिया होते थे, कुछ मेडिसिन आई कैन टेक, ठीक है, वो मैं ले लेता था कि सो दैट कि एक एंग्जाइटी को लेवल को कम करना है। बाकी कोर्स कंप्लीट कर पाया रिवीजन में तो कर लिया, नहीं कर पाया तो छोड़ो, फिर देख लेंगे इन प्री और मेंस। नहीं, दिस ईयर देवर 20 क्वेश्चंस और मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, कोई ड्रॉप नहीं किया था। नो सर, अगर आप स्टार्टिंग से मैनेज करके चलेंगे, बिकॉज मैं सोचता हूँ आपके सामने जब 20 क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये गारंटी मानिए 20 के 20 आपको नहीं आएंगे, तो आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कौन क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से आते हैं, आप उनको टिक कर लीजिए, स्टार्ट विद देम। तो आप 2 घंटे में अगर आप मेरे ख्याल से 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन भी करते हैं, या आप मान लीजिए 12 भी करते हैं 6 की स्पीड पे, 10 मिनट्स में क्वेश्चन भी लिखते हैं, तो 12 हो गए। थर्ड आवर में आप आराम से 8 क्वेश्चन कर लेंगे जो आपको थोड़े थोड़े आते हैं। मतलब ये स्ट्रेटजी मेरी थी, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट करूँ और हो सकता है कि अच्छे क्वेश्चंस मेरे जो मुझे आते हैं वो मेरे लास्ट में हैं, तो मैं उनके साथ पूरी तरह जस्टिफिकेशन नहीं कर पाऊंगा। तो कोशिश मैं हमेशा ये करता था कि जो क्वेश्चन मुझे अच्छी तरह से आते हैं पहले कर लो, 2 घंटे में 12 कर लिए, 1 घंटे में मैं 8 भी कर दूंगा। सर जैसे देखिए
क्वेश्चंस में जैसे उनके कोई फ्रेम होते थे, जैसे उन्होंने पूछा था इस बार आर्बिट्रेशन एंड कंसालिएशन एक्ट में कुछ समथिंग पूछा था, नहीं आइडिया था। मैंने क्या किया, मैंने आर्बिट्रेशन के बारे में और कंसलेशन के बारे में थोड़ा मेंशन किया, क्यों चाहती है गवर्नमेंट, ये किया मैंने, बिकॉज ऑफ केस लोड, बिकॉज ऑफ डिले इन केसेस, कहते हैं पॉलिसी क्रंच हो रही है एंड ऑल, ये सब वो चीज़ें लिखा। फिर जो लगा थोड़ा बहुत यार एक्ट से रिलेटेड है, लिख देंगे, बाकी नंबर देखा जाएगा। सो लाइक दैट सर। ऐसे राइटिंग के लिए जैसे अगर अभी मैं कहूँगा आप स्टार्ट में मत स्टार्ट करिएगा, जब तक आपका चारों पेपर ना हो जाए, पेपर 1 2 3 4, तब तक बिल्कुल स्टार्ट मत करिएगा। जब वो चारों पेपर आपके हो जाएंगे तो आपको तब ईजी हो जाएगा चीज़ों को रिलेट करना, क्योंकि ऐसे में क्वेश्चंस वो पूछते हैं जिसमें वो आपके पर्सनल व्यूज जानना चाहते हैं, बट पर्सनल व्यूज अलोंग विथ योर फैक्ट्स, मतलब आपने इवेलुएट किया तो आपके इवेल्यूशन करने के क्या क्या आधार थे, अगर आप वो नहीं कर पाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल से इसीलिए लास्ट में रखिए, प्रैक्टिस करिए, को लास्ट में करिएगा, स्टार्टिंग में करने से कोई फ़ायदा नहीं है, या फ्रस्ट्रेट होंगे और कुछ नहीं सर। 91 सही थे मेरे सर, 100 में सर। हाँ शायद इट वॉज अ लक, बिट लक। सो फर्स्ट टाइम, दिस वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। 100 हाँ सी सेट का सर, मतलब याद तो नहीं, बिकॉज पेपर थोड़ा टफ आ गया था, बट इट वॉज लाइक कि हाँ क्वालिफाई कर जाऊँ, मन में आ रहा था कि क्वालिफाई कर जाऊँ, क्वालिफाई कर जाऊँ। मुझे सर याद नहीं मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे, बट ये था कि हाँ मैं सेफ जोन में हूँ, पहले सोच लिया सेफ जोन में हूँ, ठीक है अब सेफ जोन में हूँ तो। सर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो प्री के लिए मैं कहूँगा फॉर हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 7th to 10th, 11th 12th दोज बॉक्सेस मेरे ख्याल से वो 2-3 घंटे में हो जाएंगी, ठीक है। एनसीईआरटी के लिए राजीव अहिर की मॉडर्न हिस्ट्री की आती है, स्पेक्ट्रम की बुक आती है, पतली सी बुक है, 200 पेजेस की है, बहुत छोटी सी है, 1 दिन में हो जाती है, 2 दिन में हो जाती है, रिवीजन करने के लिए फिर 1-2 दिन आपको चाहिए होंगे। प्लस इग्नू के नोट्स, आर्ट एंड कल्चर, फिलॉसफी, 5 पेजेस की है, आर्ट एंड कल्चर, फिलॉसफी, एंड वन मोर इज देयर, आई एम मिसिंग, मैं आपको बता दूंगा मुझे याद आता है तो भी। एंड तमिलनाडु की सर एनसीईआरटी आती है क्लास 11th की, उसमें सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़िएगा, मेडिवल मॉडर्न मत पढ़िएगा, अच्छा नहीं है, बेकार है, सिर्फ एंशियंट। ये हिस्ट्री के लिए। ज्योग्राफी के लिए आप कुछ मत करिए, क्लास 7th to 12th ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, बट हर एक सेंटेंस का मीनिंग आपको आइडिया होना चाहिए, वो कुछ भी पूछ सकते हैं उससे, कुछ भी, और वो बिल्कुल मिक्सअप करके पूछेंगे। एंड देन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, बहुत है सर, बहुत है, वही नहीं कर पाते, एंड मतलब मुझसे तो नहीं हो पा रहा था लास्ट टाइम तक वो भी। एंड सब्जेक्ट से मुझे याद है एक, हाँ, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए सर, सर इग्नू के ही नोट्स आते हैं, बट वो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 20-25 चैप्टर्स हैं, उतने नहीं पढ़ने। उस पर चैप्टर होगा बायोडाइवर्सिटी, एक होगा इन्वायरमेंट, नहीं सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैंने खरीदी थी, मैंने पढ़ने की कोशिश भी की, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम टोटली। सर उसमें 4-5 चैप्टर्स है, आप खुद एक बार देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा हेडिंग कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। प्लस एनसीईआरटी की क्लास 11th 12th और 10th की साइंस की बुक आती है, उसमें सर लास्ट में कुछ कुछ चैप्टर्स इन सी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, वो ज़रूर कवर कर लीजिएगा, उसमें साइंस एंड टेक का पार्ट भी आपका बहुत कवर हो जाएगा। प्लस जीके टुडे के सर वो जो पेपर्स हैं आपको, जैसे मैं बताया 17-18 पेपर्स होंगे, आप उनको पढ़ते हुए, क्वेश्चंस को पढ़ते हुए सिर्फ उनका आंसर्स को आप देखते चले जाएंगे, आपका मैक्सिमम करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाएगा। मतलब मैं आपको सच बताऊं तो इवन जब मैंने प्री दिया तो उसमें मेरी कम से कम 17-18 तो मेरे से उसी से याद थे, बिकॉज रिसेंट पढ़ा था, मुझे याद आ गया था कि ये सही है। एंड सर सब्जेक्ट बताइए, मैं भूल रहा हूँ, सॉरी। साइंस एंड टेक के लिए सर, साइंस एंड टेक के लिए जैसे आपको बताया एनसीईआरटी सर, जैसे साइंस की जो बुक है क्लास 7th to 10th, इसमें आप ना सिर्फ जब पढ़िएगा तो आपको केमिस्ट्री का पार्ट नहीं पढ़ना, हटा दीजिएगा टोटल, लेकिन केमिस्ट्री में सिर्फ एक बॉक्स, वही जैसे बॉक्स है, वो बॉक्स जरूर हाईलाइट, बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल वो बोले मेलाचाइटिस ग्रीन, तो वो क्यों है ऐसा करके आप देख सकते हैं, तो वो थोड़ा आपको सही लगेगा सर, मतलब ऐसा करके। हाँ सर, सर फिजिक्स में जैसे वो कुछ चीज़ें पूछते हैं, जैसे वो न्यूटन्स लॉज पूछेंगे या ऐसा पूछेंगे, उन्हीं में कुछ रिलेट करके वो पूछ देंगे सर। सर एग्रीकल्चर, सर मेरे ख्याल से आप जीके टुडे के जो नोट्स हैं वो बहुत, प्लस इनकी जो बुक है सर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा कवर किया हुआ है एग्रीकल्चर का पार्ट।
सी सेट के लिए मेरे ख्याल से अब तो क्वालिफाइंग हो गया था आई थिंक। आप अगर सेफ जोन में एक बार चले गए हैं तो इट विल बी ईजी फॉर यू। बट मैंने कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया था उसके लिए, जस्ट वेंट फॉर कि इंग्लिश है, थोड़ी हिंदी है, मतलब मैथमेटिक्स है, हो जाएगा करके। मृणाल के साइड पे पूरे हैं सर। कहाँ गए थे भाई? थैंक यू थैंक यू। मिलता हूँ अभी। आपने कुछ पूछा था सर। हाँ, इग्नू के नोट्स मृणाल के साइड पे पूरे अवेलेबल है सर, क्लास 7th to 10th। बहुत हो जाएगी सर। सर स्टैंडर्ड बुक्स जो है, एनाटॉमी बीडीसी कर लीजिए, फिजियोलॉजी के लिए गेनोंग, ऐसे कर करके मैंने नहीं सर, मैं आपको बताया ना, उनके सिलेबस में पर्टिकुलर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सिर्फ वो पॉइंट्स आप कवर कर लीजिए, काफ़ी है, बहुत है वो। और जब आपके सामने कोई क्वेश्चन ऐसा आए जो आपको लगता है कि यार ये कहाँ से उसने पूछ लिया, ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप सोचिए कि सिलेबस में कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा और आप देखेंगे वो आप कर लेंगे। सर मैंने तो कोशिश की थी, पहले डेविडसन भी उठाई है, हैरिसन भी उठाई, लास्ट में मैथ्यूज पे आ गया था। साइट सर, मैं समझा नहीं सर। इग्नू सर मृणाल, MRUNAL। मत करिए सर, मैं सीरियसली बोलूं, अगर आप ज़्यादा आप मतलब वास्ट नहीं सोचना चाहते, इनसाइट ऑफ इंडिया बहुत ही ज़्यादा टफ है, मतलब मेरे लिए, मैंने 1 month किया था, बहुत बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और उतना गेन नहीं है, मतलब मैं कॉस्ट ज़्यादा है बट गेन नहीं हो रहा था। सर जैसे वो लोग फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, आप उसको कर सकते हैं कंसिडर एक बार, बट मैं चाहूँगा कि अपने खुद बनाइए तो ज़्यादा आपको अच्छे लगेंगे, ईजी लगेंगे सर। मैं समझा नहीं सर, मतलब सर मार्क्स कितने हैं? नहीं सर, आपको आंसर लिखते समझ में आ जाएगा आप सही जा रहे हैं या बाहर भाग रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन फ्रेम रहता है ना, वो क्या जानना चाहता है, अगर आपने एक बार समझ लिया और आपने लिखना स्टार्ट किया, जब आप कंक्लूड करते हैं अपनी लाइन में, अगर आपको लगता है कि वही कंक्लूड करना है जो वो ऊपर पूछ रहा है, तो आपको लगेगा आपने अच्छे मार्क्स, आपने अच्छा आंसर लिखा है, और खुद ही अंदर से लग जाएगा नहीं यार कुछ गड़बड़ हो गया है, लिख दिया है लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया है, इस लाइक ऐसा होता है सर, सीरियसली आप खुद कोडिंग कोशिश करेंगे आपको ऐसा लगेगा। और ये बात याद रखिएगा कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन अगर वो पूछ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे लगेंगे कि यार मैंने लिख दिया है, बट देखते हैं कितने मार्क्स देते हैं। हाँ सर, वो मैंने किया था, प्री के बाद मैंने बहुत कोशिश की थी सर उसको। सर मॉक टेस्ट दिया था मैंने, बट ज़्यादा जगह पे नहीं देता था मैं, ध्येय में ही इलाहाबाद में कुछ क्वेश्चन पेपर्स यहीं से दिल्ली से चले जाते थे, मैं उन्हीं को थोड़ा सा प्रैक्टिस करता था, वहीं पे टीचर थे दिव्य वेदांत सर, उनको देता रहता था, फिर जयसिंह सर थे एथिक्स के, उनको देता रहता था, वो लोग चेक करके मुझे अपना रिस्पॉन्स देते थे, मैंने उसी से किया सर। सर न्यूज़पेपर रीडिंग की सर, मैं अगर लोग कहते हैं हिंदू पढ़ने के लिए, मैं सजेस्ट करूँगा इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू थोड़ा सा लेफ्टिस्ट है, इंडियन एक्सप्रेस क्या करता है, दोनों व्यूज़ देता है आपको, प्रो एंड कॉन्स, तो आपको ईजी रहता है चीज़ों को बैलेंस करना, क्योंकि आप कब तक हिंदू के थोड़े स्लाइड लेफ्ट के आर्गूमेंट्स को कब तक आप बैलेंस कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा इंडियन एक्सप्रेस इज़ राइट, बट अच्छे आंसर, मतलब उसका जो एक्सप्लेनेशन रहता है वो थोड़ा अच्छा रहता है, आप बैलेंस कर लेंगे ईजिली दोनों को। सर जैसे पॉलिटिकल पार्ट जो होगा बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई यूज़ नहीं है, आप एक काम करिएगा सर, अपने सिलेबस का सारे पार्ट, सारे क्वेश्चंस को, सॉरी सारे टॉपिक्स को एक बार ध्यान से देख लीजिए, उन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आता है, हाँ, फ्रंट पेज पे या किसी भी पेज पे, उस पॉइंट को आप समझ लीजिए, अगर आपको समझ में, आपने पढ़ते वक्त ही समझ में आया कि आगे क्या लिखा हुआ है, काफ़ी है, बिल्कुल काफ़ी है। विनय सिंह सर ने यही कहा था, द डे जिस दिन आप एक एडिटोरियल, सॉरी किसी भी टॉपिक का हेडलाइन पढ़ने के बाद आप आगे समझ ले रहे हैं कि क्या होना चाहिए, आप समझिए कि उस सब्जेक्ट को आपने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है सर। सर मत किया करिए, मैं कहूँगा कि हमेशा अगर आपको कवर करना है किसी भी पार्ट को, किसी एक पर्टिकुलर बुक से किया करिए और स्टिक टू दैट। आप जितना ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे आपको रिवीजन में उतनी प्रॉब्लम होगी, और प्लस जो फैक्ट्स की कंट्रोवर्सीज आएंगी उसमें आप बिल्कुल उलझ जाएंगे, और आप क्या करेंगे, गूगल खोलेंगे और मैक्सिमम टाइम आप कंज्यूम कर देंगे सिर्फ इस फैक्ट्स को करेक्ट करने के लिए। बेटर है एक बुक को करिए,
और अगर आप, मैं कहूँगा कि एक रिलायबल बुक को करिए, इकोनॉमिक सर्वे करिए, इंडियन ईयर बुक को करिए, और अगर आपको डाउट होता है कि लोग कहेंगे कि गलत है, आगे कोट कर दीजिए इंडियन ईयर बुक 2016, 14, 15। आपको मेरे ख्याल से आपको इसमें बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ये काम मैंने पेपर 3 में किया था, बिकॉज पेपर 3 वॉज फैक्ट्स बेस्ड। मैंने पेपर 3 में मुझे कोई फैक्ट लिखना होता था और मुझे लगता था कि वो आगे डाउट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे क्वेश्चन पूछा था, हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है ऑल मेंशन करते वक्त मैंने आगे मेंशन कर दिया इकोनॉमिक सर्वे या जो भी NRHM, सॉरी आपके फैमिली हेल्थ सर्वे का जो भी रिपोर्ट है मैंने मेंशन कर दिया था। तो सर इंडियन ईयर बुक में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है प्री के लिए कवर करने के लिए, शायद चैप्टर नंबर 2 और 3 कवर करने होते हैं, वो उतना उससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता। बट मेंस के लिए 2-3 और हैं वो आपको कवर कर लेने चाहिए तो बेटर रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे सर मेरे ख्याल से इकोनॉमिक सर्वे मत खरीदिएगा, उसका इवेल्युएशन बहुत लोग करते हैं, जैसे अरिहंत है या बहुत सारी हैं, उनको पढ़ लीजिएगा, वो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। लास्ट में जैसे प्री, आज मान लीजिए आपका 1 महीने बाद प्री है, उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे में कुछ कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे रहते हैं बॉक्सेस में, वो सिर्फ देख लीजिएगा, वो देख लीजिएगा आपको शायद, बिकॉज जैसे उन्होंने पूछा था इस बार 14 फाइनेंस कमीशन में क्या नहीं था, एक क्वेश्चन ऐसा कुछ था, वो आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे में लास्ट से शायद 10th या 14 पेज होगा, उसमें उसने पूरा आराम से क्लियर एक्सप्लेन किया हुआ है। नहीं होल नहीं, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रॉब्लम, उसमें बॉक्स बने होते हैं, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन लिखा होता है, उतना पढ़ लीजिए काफी है। एल्प्राजोलम लिया मैंने था, और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, एल्प्रेक्स मुझे लेना पड़ा था, बिकॉज इट वाज बहुत ही ज़्यादा एंशियस मोमेंट हो गया था, और लास्ट पेपर था, तो इट वाज लाइक कि अब तो कुछ करना ही है, तो मैंने फिर मेडिसिन लिया था। बाकी अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो बेटर है कि मॉक इंटरव्यूज जितने आप दे सकते हैं, वैसे मैं कहूँगा 2 से 3 से ज़्यादा मत दीजिएगा, वो आपको और स्ट्रेस देता है, तो बेस्ट ये है सर। यूज़ कर सकिए, मेरे ख्याल से ऐसे में मत करिएगा, बाकी आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। सर लोग कहते हैं कि पैराग्राफ बेटर रहता है, बट मुझे लगता है बुलेट पॉइंट ज़्यादा इजी रहते हैं और आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स दिला सकता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं नहीं जानता वो लोग कैसे मार्क्स देते हैं, बट मैंने पेपर 3 जो कि मैं आज की डेट में मैं बोलूँगा कि मेरे अच्छे मार्क्स हैं, तो उस पेपर में पूरा मैंने सब कुछ बुलेट पॉइंट्स में लिखा है, कुछ भी पैराग्राफ में कहीं नहीं लिखा मैंने। सर आई थिंक दैट्स बजट। सर जैसे आप थोड़ा ये आइडिया ले सकते हैं कि कितना कितना पार्ट कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर है। जैसे मुझसे इवन इंटरव्यू में पूछा गया था कि जो गवर्नमेंट जो भी डेट लेती है, जो भी बॉन्ड्स इशू करती है, क्या ये बजट में मेंशन होता है या नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत आपको बजट का आइडिया रहेगा तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। बट सर नहीं सर, मैं बिलीव नहीं करता था। 2-3 लोग थे, उसको ग्रुप तो नहीं बोलना चाहिए, बट 2-3 लड़के थे, मैं उन्हीं के साथ बस एक नॉर्मल फोकल। सर मुझे लगता है टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। जो 2-3 बंदे होते थे सर, जैसे हम एक टॉपिक ले लेते थे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक बोल दिया हमने, उस टॉपिक के बेस पे वो टॉपिक ले लिया, हम लोग साथ में कभी बैठेंगे